A very good morning to all of you. Morning, sir. Okay. So according to the new revised syllabus given by the CBSE for the term 1 exam, the syllabus I told you for the term 1. So we were doing the third chapter for the term 1, and this is the last chapter of this book which we will be covering for the first term. So we had started with this chapter where I had given you some information regarding the local governments, both at the rural and the urban level, and the structure for you, and its functions also I had described you, and in detail we had discussed two topics, that why local government is important, and then we had seen local government before independence period, that is from the very ancient time or the earliest time. In the last lecture we had discussed that the complete cycle I told you of evolution of local government. We had discussed that how slowly and gradually we have made evolution to the present local government, which we see according to the 73rd and 74th Amendment Act, Constitutional Amendment Act of 1992. Basically this day. But we will see this is not a single date. Before this, how 73rd and 74th Constitutional Amendment came into effect. Okay, so this is the thing which we will discuss in it, and we'll also see that before. So a question can come that what was the status? जो हमने last topic पढ़ा है, what was that topic? Please read out for me. Growth of local government in India. Yes, growth of local government in India before independence and after independence till 1992 तक कैसे growth हुआ? We have seen this. So now there can be a simple question from your book, because now you are in class 11. Chapter के वो नहीं है कि जो मैंने question लिखा है वही आएगा. Concept based questions will be there. So there can be a question that describe what was the local government before 73rd Amendment and after 73rd Amendment. तो before भी बताना पड़ेगा आपको and after also. Before तो हमने पढ़ लिया क्या था हमारा local government का status. Now we'll see जैसे ही हमारा 73rd Constitutional Amendment होता है तो what are the changes in the powers and functions of the local government. तो वो हो जाएगा after effect of this amendment which we will discuss today. Any new student? जिसको पता ना हो पढ़ ही क्या रहे हैं. Anisha, you are absent. Why you are absent that day? Fever. Because you need not to miss any class. But each and every lecture is very important. हम बीच में एक भी lecture छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या आपका gap आ गया है. Now those have not attended the last lecture, उनके लिए ये थोड़ा सा difficult होगा समझना, है ना? क्योंकि हमने इससे पहले समझा है complete process of evolution of local government. So आप बेसिकली जो नए आए हैं बस इतना माइंड में रखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुए थे, लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ चेंजेस हुए थे. वो चेंजेस को हमने क्या बोला है 73rd and 74th अमेंडमेंट में चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी चेंजेस क्या थे? तो 73rd हमने बताया था इट इज रिलेटेड टू व्हिच एरियाज. तो आज हम पढ़ेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने. बट अब वो कैसी पावर्स हो गई हैं? मैंडेटरी पावर्स हो गई हैं बिकॉज इट इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. बिफोर क्या था? कोई स्टेट देती थी कोई नहीं देती थी. यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था. तो यूनिफॉर्म सिस्टम कहां से आया है? 1992 अमेंडमेंट से फॉर द रूरल एरियाज. और ये कौन सा हो जाएगा? अर्बन एरियाज. ठीक है, अर्बन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ये वाला. चलिए आई एम रीडिंग इट नाउ फ्रॉम योर बुक. So we had already seen this in the last lecture. In 1989 when which committee was formed? Name of the committee which has given the recommendation for the constitutional amendment. What was the name of the committee? P.K. Thomas. Okay. So in 1989 the central government introduced two constitutional amendments. तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स थे 73rd and 74th. द क्वेश्चन कैन बी 74 का जो अमेंडमेंट हुआ जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया दैट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी. तो यू मस्ट नो द नेम पीके थॉमस कमिटी. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. These amendments aimed at strengthening local governments and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country. तो जो ये अमेंडमेंट था अगर इसकी हम बेसिक आइडिया बेसिक एसेंस और अगर हम इनका देखें तो क्या था? स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रॉन्ग करना लोकल गवर्नमेंट को, प्लस उनका जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है उनमें क्या लाना? यूनिफॉर्मिटी. द बिगेस्ट चैलेंज वाज पावर्स तो मिल रही थी, पावर्स तो पहले भी थी रूरल गवर्नमेंट को, लेकिन अलग अलग पावर्स थी. उनका इलेक्शन सिस्टम एक जैसा नहीं था, रिजर्वेशन एक जैसे नहीं थे. कब रिजर्वेशन कब इलेक्शन होते हैं वो टाइम पीरियड अलग अलग होता था. ठीक है, कभी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, कभी डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया. पढ़ा था हमने सबका सिस्टम अलग अलग था. बट बाय दिस अमेंडमेंट हमारा एक चीज पक्का हो गया था कि हम एम्पावर तो कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को, बट उसके साथ साथ क्या ला रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी. लाइक टुडे यू आर वेयरिंग ऑल ऑफ यू आर वेयरिंग सेम यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म है क्लास. तो हमें समझ आ रहा है स्टूडेंट्स है गर्ल्स है बॉयज की ड्रेस है. बट आप कलर ड्रेस में आते तो प्रॉब्लम होती है. ठीक है.
तो दिस अमेंडमेंट एम, तो याद होना चाहिए कि एम क्या था, ये जो अमेंडमेंट हुई है तो इनका एम आप शॉर्ट टाइम में ले सकते हो। एम क्या था? स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। अब जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? सेम टू सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट टू इंक्लूड ऑल द प्रोविजंस व्हिच हैज बीन गिवन अंडर दिस अमेंडमेंट 73 एंड 74 फॉर रूरल एरियाज एंड फॉर द अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है उत्तराखंड में अलग रूरल गवर्नमेंट बन रही है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसकी रिजर्वेशंस अलग है, वो इस 73rd अमेंडमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। राजस्थान में अलग चल रहा है, मध्य प्रदेश में अलग चल रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि वी विल फॉलो अ सेम यूनिफॉर्म। वर्ड हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्मिटी लानी थी हमें, ठीक है। नाउ लेटर इन 1992, तो ये क्या हुआ? सबसे पहले एक रिकमेंडेशन दिया किसी कमेटी ने, उस रिकमेंडेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो अमेंडमेंट से उन्होंने क्या बिल पास कर दिया। बिल पास कर दिया मींस डिस्कशन कहां पर शुरू हो जाएगा हमारा? लोकसभा एंड राज्यसभा में कि वी हैव टू ब्रिंग दिस अमेंडमेंट्स। तो ये बिल पहले लोकसभा से पास होंगे, फिर राज्यसभा से पास होंगे, प्रेसिडेंट विल साइन इट एंड फाइनली एग्जीक्यूटिव विल इंप्लीमेंट इट। एक लॉ बन जाएगा कि इसको हमें इंप्लीमेंट करना है इन द वेरियस स्टेट्स। तो बट अभी क्या हुआ था? 1989 में पहले रिकमेंड किया है कमेटी ने, पीके खोमू ने, गवर्नमेंट ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बिल को। फाइनली 1992 में, तो फिर क्या 2 साल क्या चला उसके ऊपर डिस्कशन। मैंने बोला डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग क्या होता है? लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट दोस डिसीजंस आर क्वालिटी डिसीजंस। क्लास 9 में भी जो आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का चैप्टर। डेमोक्रेसी के मेरिट्स भी पढ़े हमने, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज इसको बोलते हैं कि डिसीजंस लेने में टाइम लगता है। टाइम तो लगता है बट इसमें क्या सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपना माइंड यूज करते हैं, तो उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हमारा क्या हुआ? 2 इयर्स के लिए 1989 से शुरू हो गया था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था उस बिल को। एक्सेप्ट कर लिया डजंट मीन वो इंप्लीमेंट हो गया। उसके ऊपर क्या चला? डिस्कशन चला लोकसभा राज्यसभा में। फाइनली वो बिल पास कब हुआ? 1992 में। एंड फाइनली ये इंप्लीमेंट कब हुआ? बिल तो बन गया, लॉ बन गया, बट लॉ बनने से कुछ नहीं होता। इट इज ऑन पेपर, it will be effective when it comes into practice. So it was into practice in 1993. बट जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो दिस इज द डेट वी यूज। रिकमेंड किया 89 में, बिल्स को इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया, डिस्कशन हुआ, 93 में इट वाज इंप्लीमेंटेड। इट मींस 93 में इट बिकेम मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट्स टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस जो रूल रेगुलेशन बनाया 73rd 74 अमेंडमेंट के अंदर फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd से वो क्या हो गया? इनटू प्रैक्टिस, मतलब इंप्लीमेंट हो गया। तो ये साइकिल याद रखना, जब आप आंसर लिखोगे तो पता होगा, जैसे सीधा 92 में लिखोगे, 89 में, उसी को पढ़ रहा हूं। देखिए, लेटर इन 1992 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर पास्ड इन द बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम आ रहा था लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउस है हमारा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, ठीक है। द 73rd, अब हम इंडिविजुअली बात करेंगे, अभी इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम किसी बात कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। सो द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट व्हिच आर आल्सो नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दैट इज द रीजन मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। जो लोग रेगुलर थे, रूरल का मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, जो रेगुलर आर्ट को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं रीडिंग कर रहा था, आपके रीडिंग करने लायक बचा है बस, ठीक है। तो ये था हमारा 73rd, इससे रिलेटेड था रूरल। और रूरल को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर कितने टीयर्स है? 3 टीयर्स है। हमने उनके डिटेल फंक्शनिंग देख ली है, उनके मेंबर्स देख लिए हैं, ठीक है। इवन ये भी देख लिया हमने वो 3 टीयर क्यों है उनकी, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। और इसको हम शॉर्ट PRI बोलते हैं। तो मैं क्या आएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या PRI शॉर्ट वर्ड यूज हो सकता है। और जो 74th अमेंडमेंट है हमारा, मेड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसको हम नगर, और हिंदी में क्या होता है? नगर पालिका भी बोलते हैं। और मैंने क्या लिखाया है आपको? अर्बन गवर्नमेंट्स में कितने टीयर्स है? अर्बन गवर्नमेंट में कितने टीयर्स बताया मैंने आपको? 3 बताया अलग अलग लेवल पे। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि साइज ऑफ द टाउन। कोई बड़े टाउन से रूरल, कोई होता है ट्रांजैक्शन वाले पार्ट में होते हैं कि वो रूरल मतलब गांव से शहर बन रहे हैं धीरे धीरे, उनमें कुछ कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रीज छोटी छोटी। एक होता है छोटे टाउन्स एस्टैब्लिश हो गए हैं प्रॉपर, एक होता है मेगा सिटीज, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे कौन से टाउन्स होंगे? वहाँ पे होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वो नाम अलग अलग थे, वो मैं जब 11 पार्ट पढ़ाऊंगा, जो मैंने नोट्स लिखाए तब उस पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसका इतना ही था, आपको ये ध्यान रखना। नगर पालिका बोलते हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 1993 से दे आर प्रेजेंट। 92 में इंप्लीमेंट हो गया, आ गया था, पार्लियामेंट में पास हो गया था। 1993 में दोनों एक साथ क्या हो गए? एक साथ इंप्लीमेंट हो गए।
स्टेट्स। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, हर स्टेट के लिए क्या ऑर्डर आ गया कि नाउ लोकल गवर्नमेंट्स क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फंक्शनिंग होगी, ऑल वाज डिसाइडेड बाय द दिस 1993 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दिस 73rd and 74th amendment constitutional amendment. We have noticed earlier that local government in a state subject, हमने पहले क्या पढ़ा बीच में, जो local government होती थी it used to be a subject of a state, so it was totally financially or structurally was dependent on the state. स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, उसकी विल या उसकी चॉइस पे डिपेंड करता था कि उसकी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो उसको कितनी पावर्स दें, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ऑल वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उनकी चॉइस नहीं होगी, कंपलसरी हो गया कि स्टेट को लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और इन टर्म्स कंडीशन पे करना पड़ेगा जो इसके अंदर लिख के दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बना दी है एंड ये सारे स्टेट्स को इस लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, so they have written, you have noticed earlier that local government in a state subject, the state are free to make their own laws on this subject. पहले फ्री थे वो, जो सब्जेक्ट था उनका लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर वो अपने हिसाब से लॉज बनाते थे। बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ हमारा 92 में अमेंड हुआ एंड 93 में वो इंप्लीमेंट हुआ, तो क्या चेंजेस आ गए, constitution was amended, the state had to change their laws, but local bodies in order to bring these in conformity with the amendment constitution, they were given 1 year's time for making necessary changes in their respective states. Now all the states they were given a period of 1 year. इस सिस्टम को फंक्शनल करो, एकदम से चेंज नहीं हो सकता, लोकल गवर्नमेंट बोलने मसाने। पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इंप्लीमेंट करने में, लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में रूरल अर्बन दोनों लेवल पे टाइम लगेगा। तो कितना साल का टाइम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट को, उत्तराखंड को भी ऐसा यहाँ पे देहरादून शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोकल गवर्नमेंट हमने क्या करना है, एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, तो 1 ईयर का टाइम दिया प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। They were given 1 year's time for making necessary changes, जो भी चेंजेस करने हैं इन टर्म्स को फॉलो करने के लिए उसे कीजिए आप टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स लॉ इन द लाइट ऑफ दिस अमेंडमेंट। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, अब हम कंप्लीटली किसे फोकस करेंगे 73rd के अंदर ही क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या पावर्स हम लोकल गवर्नमेंट्स को देने वाले थे। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो पहले उत्तराखंड स्टेट के पास थे, अब वो किसको दे दिए, उत्तराखंड स्टेट्स ने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए हैं, मर्जी से नहीं किए हैं, क्योंकि किसने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला है। ठीक है, लेट अस नाउ एग्जामिन द चेंजेस ब्रॉट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जब भी हम रूरल की बात करेंगे तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात। देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चेंज आए इस 73rd अमेंडमेंट से। सो 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, ये तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो पंचायती राज में 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। ऑल स्टेट्स नाउ हैव अ यूनिफॉर्म 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर। देखो ऊपर लिखा गया है ऑल स्टेट्स नाउ हैव यूनिफॉर्म, मतलब इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट होगी। अगर रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही चलेगा, और उस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने टियर्स होंगे, 3 टियर्स होंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसे हम ब्लॉक भी बोलते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत या परिषद। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सब जगह होगा, अब स्टेट की चॉइस नहीं होगी। अब ग्राम पंचायत कवरिंग अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, मैंने बताया था अगर बड़ा विलेज होगा तो ग्राम पंचायत एक ही विलेज से बन जाता है, अगर छोटे छोटे विलेजेस हैं तो उनको हम एक साथ मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बना लेते हैं। एट द बेस द ग्राम पंचायत, अ ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इंटरमीडिएटरी बीच में कौन सा लेवल होता है जिसे हम मंडल भी बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं और पंचायत समिति भी बोलते हैं। ठीक है, दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल्स और तालुका भी बोलते हैं। The intermediate level body need not be constituted in smaller states. अब क्या होगा, कुछ स्टेट बहुत छोटे होंगे, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो उसमें 2 ही लेवल चलता है क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें इजीली एक लेवल के नीचे कौन सा लेवल होगा, ग्राम पंचायत, ऊपर सीधा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उस स्टेट की जो साइज है बहुत छोटा है, उसमें इतना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिंग नहीं है कि हम छोटे छोटे एरियाज को पहले हम पंचायत में बांटे, फिर ब्लॉक में बांटे, फिर डिस्ट्रिक्ट में बांटे। वो स्टेट खुद में ही एरिया इतना कम है, पॉपुलेशन इतनी कम है, तो इजीली वो ग्राम सभा एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट हो जाता है। बट वो कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है, जैसे कि सिक्किम, गोवा, तो छोटे स्टेट्स हैं। दैट इज व्हाई इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंटरमीडिएट लेवल बॉडी नीड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट। जो ये बीच वाला क्वेश्चन है हमारा पंचायत समिति वाला, इसको छोटी स्टेट्स में होना जरूरी नहीं है। एट द एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो सबसे नीचे हमारा क्या है, ये वाला लेवल कौन सा था हमारा, ग्राम पंचायत,
इसके ऊपर आएंगे तो हमारा क्या है, क्या है ब्लॉक है। और क्या बोलते हैं ब्लॉक को, पंचायत समिति और तालुका भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा जिला पंचायत। तो दिस इज स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर सारे स्टेट में फॉलो होना था। गवर्नमेंट सबसे नीचे से चलेगी विलेज लेवल से, विलेज के ऊपर ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट, तो ये किसको कवर कर लेगा पूरा, ये सिस्टम एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेगा, एक स्टेट के। ऐसे ही अगर 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर उत्तराखंड में कितनी जगह होगा, 13 जगह होगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट के लिए होता है कि स्टेट पैसा किसको देगी, जिला पंचायत को। जिला पंचायत उसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेगा, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक में कौन होते हैं, सरपंच मेंबर होते हैं। तो सरपंच बताएंगे मेरे विलेज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली वो पैसा कहाँ फ्लो कर जाएगा, ग्राम पंचायत में। ये सब मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर कुछ नए स्टूडेंट थे इसलिए बता दूं। एपेक्स हो गया टॉप पॉइंट। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है हमारा, जिला पंचायत। At the apex is the Jilla Panchayat, covering the entire rural area of the district. Covering the entire rural area of the district. तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हमने बना लिया तो डिस्ट्रिक्ट का जितना भी रूरल एरियाज है ये सिस्टम उसको कवर कर लेगा। The amendment also made a provision for the mandatory creation of the ग्राम सभा। अब ये हो गया, हर विलेज में ग्राम सभा को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसके अंदर तो मेंबर्स आएंगे ना जो इलेक्टेड है, ग्राम पंचायत हो गए, इसके सरपंच और पंच आ गए। इसके अंदर जो मेंबर्स मैंने बताए थे सारे, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हमारे एमपी एमएलए और इनका हेड कौन था, जिला पंचायत का मेयर, क्या था इनका हेड, क्या बताया था मैंने, हाँ आईएएस और स्टेट लेवल का भी, स्टेट लेजिस्लेटिव डायरेक्टर वाला भी बताया था मैंने, ठीक है। तो ये तीन में तो बस मेंबर्स आ रहे हैं ना। तो इसमें हमने क्या बोला, ग्राम सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो ग्राम सभा के विलेज में क्या डिसीजंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर कौन करेगा, उस विलेज के 18+ जो भी लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अलग से लिखा हुआ है अमेंडमेंट। जो ये अमेंडमेंट हुआ था 73rd, उसमें ये भी लिखा हुआ था दैट प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, हमारे गांव में किसका सर्कुलेशन होना चाहिए, ग्राम सभा का। द ग्राम सभा वुड कंप्राइज ऑल द अडल्ट, और कौन मेंबर होंगे ग्राम सभा के, ऑल द अडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एंड वोटर्स इन अ पंचायत एरिया। जो पंचायत में, इस पंचायत में वोट दे रहे हैं वो लोग उसके मेंबर होंगे। इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उनके फंक्शंस क्या होंगे वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट। और स्टेट भी कैसे डिसाइड करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बोलने को स्टेट डिसाइड करेगा, बट वही कहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्राम सभा होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो मॉनिटर करती है कि जिनको हमने इलेक्ट किया है वो ढंग से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और होता है जो गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है ग्राम पंचायत में, सेक्रेटरी। जो गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसका काम क्या होता है, मॉनिटरिंग। वो मॉनिटरिंग करता है और नोट डाउन करता रहता है, कंप्लीट रिपोर्ट बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है ऑफ द वेरियस मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत। एनुअली जब ये मिलते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है, कि ढंग से अपनी पावर्स का, फंक्शंस का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, ये पूरी रिपोर्ट बना करके कौन देता है, सेक्रेटरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हमने देख लिया मेंबर कौन कौन होते हैं, क्या डिवीजन होता है हमारा ग्राम पंचायत में। हमने देखा ग्राम सभा भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इलेक्शंस कैसे होने हैं, बस अब 11 पार्ट भूल जाओ, 74 की बात नहीं हो रही है, अब बस हम 73rd की ही बात कर रहे हैं। तो इलेक्शंस का क्या था यहाँ पर विलेजेस में, पहले तो स्टेट के अंदर था तो अपनी चॉइस से होते थे इलेक्शन। अब क्या होगा, ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज, अब इन तीनों ही लेवल में इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब आप बोलोगे मैंने तो कहा था यहाँ पर तो इलेक्शंस डायरेक्टली होते हैं, बट यहाँ पर तो इलेक्टेड हेड्स होते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, दैट ऑल द 3 लेवल्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब क्या करते हैं, पीपल डायरेक्टली हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली हम वोट दे रहे हैं, किसको इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे सरपंच और पंच को। तो हमारा इलेक्टेड सरपंच तो यहाँ पर जा रहा है, हम तो इस मींस यहाँ पर जब हम ब्लॉक प्रमुख को इलेक्ट कर रहे हैं तो कौन इलेक्ट कर रहा है, उसमें वोटिंग कौन कर रहे हैं, सरपंच। तो एक टाइप से हमारा जो वोट है, जो हमारा प्रेफरेंस है, वो उसको कौन रख रहा है यहाँ पर, हमारे सरपंच, क्योंकि उसे हमने इलेक्ट किया है, वो हमारे लिए इसको इलेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर कौन जाता है, इलेक्टेड प्रमुख होता है, तो इसको इन्होंने इलेक्ट किया, वो यहाँ पर चले जाता है, ठीक है। तो इलेक्टेड ही वर्ड आएगा, डायरेक्टली बाय द पीपल। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 ईयर। ये भी याद रखना, एक टर्म कितना होता है, एक लोकल बॉडी बन गई है ना, लोकल गवर्नमेंट बन गई तो 5 ईयर के लिए ही बनेगी, ठीक है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायत, कई बार होता है कि लोकल गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस पावर्स वर गिवन टू द स्टेट कि अंडर दिस
स्टेट क्या कर सकती है, अपनी स्टेट लोकल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, डिसॉल्व, खत्म कर सकती है। बट डिसॉल्व का मतलब ये नहीं है कि वेकेंट रहेंगे सीट्स, कभी भी सीट्स वेकेंट्स नहीं रहेगी। इमीडिएटली जैसे ही डिसॉल्व किया, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्रेश इलेक्शंस फॉर द न्यू लोकल गवर्नमेंट। अगर हम इन केस उत्तराखंड डिसॉल्व कर देती है अपनी देहरादून की लोकल गवर्नमेंट को किसी वजह से मिसमैनेज, तो उसके जस्ट बाद क्या हो जाएंगे यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन। बट खाली नहीं रह सकता है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट के वजह से इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टेट्स कि हमेशा क्या रहनी चाहिए वहां पर, एक्टिव लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ द 5-year टर्म, और ये बोला 5-year टर्म से पहले अगर डिसॉल्व कर दिया, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ सच डिसोल्यूशन। 6 months के अंदर अंदर इमीडिएटली होता है, टाइम लगता है, पर 6 महीने के अंदर अंदर नई गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब कोई गवर्नमेंट अगर 5 years के लिए, मान लीजिए 5 year के लिए इलेक्ट होती है, 2 years में ही वो क्या होगी, डिसॉल्व कर दी। 2 years, तो कितने ईयर बाकी थे इसके, अभी 3 years और थे ना। तो जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो न्यू इलेक्शन होगी, वो कितने ईयर के लिए होगी बस गवर्नमेंट, मतलब उससे जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो किसका टर्म कंप्लीट करेगी, प्रीवियस गवर्नमेंट का टर्म। उसका ये नहीं है कि यहाँ से उसके 5 साल बढ़ जाएंगे। नई गवर्नमेंट जो भी आएगी पहले वो इसका टर्म खत्म करेगी, उसके बाद न्यू इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस टर्म को कभी भी हम डिसॉल्व करता ये नहीं हो गया कि हम इसको भूल जाएंगे 5 साल को, कि यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन हुए और यहाँ पे 5 साल हो जाएंगे दोबारा। नो, पीछे वाले जितने पेंडिंग ईयर थे, चाहे वो 1 year हो, तो पहले 1 year के लिए नई गवर्नमेंट बनेगी, फिर न्यू इलेक्शन हो। ठीक है, बट और कितने मंथ के अंदर होने चाहिए, 6 months के अंदर होंगे फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, This is an important provision that ensures the existence of elected local body। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे वजह से हम इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि लोकल गवर्नमेंट हमेशा क्या रहेगी, एग्जिस्टिंग रहेगी और हमेशा क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। अगर ये प्रोविजन नहीं लिखा होता कि विद इन 6 months ही होने इलेक्शन, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती रहती, पोस्टपोन करती रहती। पता चल रहा है कि 2 years हो गए, 1.5 year हो गया, वहाँ पे इलेक्शन हो ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लिखा नहीं था कि अगर रिजॉल्व हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड में हमें दोबारा से इलेक्शन कराने हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी चीजों को फोर साइडेड थी, फार साइडेड, दूर का सोच करके पता था कि ऐसा होता है बहुत सारे स्टेट्स में, तो जब भी डिसॉल्व करेंगे तो उसके विद इन 6 months हमें क्या कराना है, फ्रेश इलेक्शन कराना है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, ताकि इसे इस प्रोविजन से ये इंश्योर किया हमने कि हमेशा लोकल गवर्नमेंट क्या रहे, एक्टिव रहे। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज। Before the 73rd amendment, in many states there used to be indirect elections। अब ये बोले before 73rd amendment, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से 1992 तक क्या होता था, बहुत जगह indirect elections होते थे। Before the 73rd amendment, in many states there used to be indirect elections to the district bodies, and there was no provisions for immediate elections after dissolution। अभी क्या हो रहा है, बहुत जगह पे क्या होते थे इनडायरेक्ट। यहाँ पे कैसा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट के जो नियर एंड डियर लोग होंगे इस एरिया के, उनको डायरेक्टली क्या बना देंगे, यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या कोई हो सकता है, उसको यहाँ चार्ज दे देंगे, डेवलपमेंट चार्ज दे देंगे, करप्शन होगा, वो पैसा खाएगा डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर। ठीक है, इस लेवल पे भी डायरेक्टली गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर देगी, इस लेवल पे भी किसी को डायरेक्टली अपॉइंट कर देगी। पहले तो चलता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसका था, स्टेट का था, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था। इट वाज नॉन जस्टिसेबल, बिकॉज वो उत्तराखंड के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर उसको सब्जेक्ट दे रखा था कि लोकल गवर्नमेंट को उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था कोर्ट में। लेकिन अब अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो उसके इस डिसीजन को कौन चैलेंज कर सकता है, कोई भी इजीली चैलेंज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है कि इसके डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड होने चाहिए। इन केस डिसोल्यूशन हो जाती है गवर्नमेंट, तो विद इन 6 months दोबारा से फ्रेश इलेक्शन करके यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट को हमें एस्टैब्लिश करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तभी तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट की पावर्स को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। अब यहाँ पे फ्री हैंड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसकी पावर्स को भी लिमिट कर दिया, क्योंकि कुछ पावर्स इसको दे दिए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिए। वो सब हम पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट को दे दिए। तो अभी हमने इलेक्शन सिस्टम देख लिया, इसके अकॉर्डिंग अब कैसा होना चाहिए, तो इंश्योर कर दिया कि यहाँ पे इलेक्शन अब कैसा होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा और स्टेट अपने यहाँ पर मोनोपोली यूज नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं रिजर्वेशंस कैसे दिए। अगर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए, तो इसके अंदर हम देखते हैं रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस क्या होते हैं, रिजर्वेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्वेशन? हिंदू, हाँ 6 किसको देंगे हम, जो डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, बैकवर्ड है, फीमेल्स हैं, कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं जो काफी बैकवर्ड हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही सोसाइटी में,
तो वो अपना भी रिप्रेजेंटेशन दे पाए सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिला पाए, इसलिए कुछ पार्ट हम क्या देते हैं रिजर्वेशन। जैसे आप जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस SC ST वुमेन्स हमने लोगों को क्या दिया, रिजर्वेशन दिया, तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं था, बेसिकली वो बहुत डाउन ट्रोडन पार्ट था जो बहुत पीछे रह गया था, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए ताकि वो और लोगों के बराबर आ पाए, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्वालिटी। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उनको ऊपर लाना, अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम ये जो पॉलिटिकल फिनोमिना लाए थे रिजर्वेशन का, वो स्टार्ट हुआ था। तो वही रिजर्वेशन की जो हम बात करते आए इंडिपेंडेंस के बाद से, वो हमने फिर से कहाँ पे देखा 1992 का अमेंडमेंट्स में 73। तो विलेज लेवल पे भी दे इंश्योर्ड कि कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, हम तो उत्तराखंड में सोच रहे हैं बहुत सारे ट्राइबल एरियाज भी होते हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिले, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिले, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो लोकल लेवल पे। हमने एग्जांपल पढ़े थे वुमेन पर जो सरपंच थी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, वो सरपंच क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है रिजर्वेशन दिए थे उन्हें, ताकि वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर पाए लोकल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जैसे हम बोलते हैं कि लोकल एरिया का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा कर सकता है लोकल लोग, इसलिए उनको पावर दी। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म, कोई हो सकता है मेल सरपंच होता तो उसका ध्यान जाता ही नहीं किस तरफ, डोमेस्टिक वायलेंस को एंड किया था उन्होंने, तो उसका ध्यान जाता है कि मेल सोचता है ये तो होता ही है सोसाइटी में, बट एज अ फीमेल सरपंच उसको पता था कि फीमेल की क्या प्रॉब्लम्स है, किस टाइप के डिफिकल्ट लाइफ वो इंडियन रूरल सोसाइटी में जी रही है, उनको कैसे एम्पावर किया जाए। तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम वुमेन्स को भी क्या दें, रिजर्वेशन दें। तो लेट्स सी इस लेवल पे क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम के अंदर रिजर्वेशन किन किन लोगों को दिया, किसने, 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस ये स्टेट ने नहीं दिया, किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो 1/3 ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो 1/3 ऑफ द सीट्स, अगर 100 सीट्स है तो 33 के अराउंड सीट्स किसकी होंगी, वुमेन की होंगी। 10 सीट्स है तो 3 सीट किसकी होंगी, फीमेल की होंगी, रिजर्व। कि अगर 10 लोगों को इलेक्शन लड़ना है, 10 सीट्स है तो उन 3 सीट्स में कौन आएंगी जीत करके, फीमेल्स ही आएंगी, उसमें कोई मेल नहीं आ सकता है, ये नहीं कि 7 तो मेल इलेक्ट हो गए, 8वां मेल नहीं हो सकता है, कंपलसरी है कि वो कौन होगी, फीमेल होगी, ठीक है। तो रिजर्वेशन 1/3 का दे दिया, ठीक है। 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। रिजर्वेशंस और वुमेन के अलावा किनको दिए हमने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल द 3 लेवल्स। इस लेवल पे भी इलेक्शन होगा तो भी हमने शेड्यूल कास्ट SC ST वुमेन को रिजर्वेशन दिया है। ब्लॉक का अगर हो रहा है, हम ब्लॉक प्रमुख इलेक्ट कर रहे हैं, तो भी इसमें भी कौन इलेक्ट हो सकता है, SC ST वुमेन्स, इनको कितना 33% या 1/3 इनको दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन बस बेस लेवल पे दे देते, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके हर तीनों लेवल पे हमने ये इंप्लीमेंट किया ये रिजर्वेशन। तो हर चीज क्लियर की है कॉन्स्टिट्यूशन की, बाद में कंफ्यूजन लग रहा है कि बोल दिया कि 1/3 रिजर्वेशन है तो ऑटोमेटिकली स्टेट बस किस पे इंप्लीमेंट कर रही है कि ग्राम पंचायत बस गांव तक उनको दे रही है, ऊपर के लेवल्स में मेल्स को इलेक्ट कर रही है बस। यहाँ पे फीमेल्स को या SC ST को कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कोई उनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए डिटेल्ड वे में 73rd अमेंडमेंट में हर चीज लिखी हुई है। तभी उन्होंने क्या लिखा है, देखो इस चीज पॉइंट को भी मेंशन किया हुआ है दैट रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर आल्सो प्रोवाइडेड for at all the levels in proportion to their population। अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 according to the population of their area। अगर वो शेड्यूल कास्ट का कोई विलेज है तो उस विलेज की जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन की बेसिस पे 1/3 की रेशियो लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा डिटेल में मत जाइए उसके, बस इतना याद रखिएगा रिजर्वेशन किस किस के लिए था और 1/3 रिजर्वेशन था, ठीक है, in proportion to their population। If the state find it necessary, they can also provide for the reservation for the other backward classes। कुछ OBC क्लासेस भी होती है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं उसके अंदर आता है ना जनरल कैटेगरी, SC ST और एक और आ गया OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो किसी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनके स्टेट में स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो किस कैटेगरी में आती हैं, OBCs में आ रही है और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और SC ST और वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल रहा है टू शो देयर रिप्रेजेंटेशन कि वो भी मेंबर बन पाए, तो उसमें इलेक्शन का रिजर्वेशन और किसको मिलेगा, OBCs को मिल सकता है, क्योंकि OBCs हर कम्युनिटी में नहीं मिलेगा आपको, बट जिस स्टेट में OBCs अच्छे खासे नंबर में है देयर पॉपुलेशन, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए एट ऑल द 3 लेवल्स इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, बस लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं, फिर विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ये पीरियड खत्म हो जाएगा। It is important to note that these reservations apply not merely to ordinary members in panchayat but also to the positions of chairperson and adhyaksha।
अभी क्या हो रहा है, अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो बस ये ना सोचिए बस जो पंच बन रहे हैं यहाँ पर या जो बस छोटे मोटे मेंबर बन रहे हैं उनको ही रिजर्वेशन जाएगा। अगर मुझे सरपंच बनना है तब भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल रहेगा, मुझे ब्लॉक प्रमुख बनना है तब भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर भी आईएएस और जो स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको छोड़ के जिनका इलेक्शन हो रहा है उन पे भी ये एप्लीकेबल रहेगा। ये तो नहीं ना आईएएस तो इलेक्टेड होकर नहीं आता ना, वो तो एग्जाम क्लियर करके आते हैं अपना, तो उन पे तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, वो तो स्टेट अपॉइंट कर रही है डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल जो उनके अंदर है, जो नॉलेज है। बट जो और इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे आते हैं वो किसके बेसिस पे आ सकते हैं, जैसे एमपी एमएलए की भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो किसके बेसिस पे आएंगे, रिजर्वेशन के बेसिस पे इन ऑल द 3 लेवल्स। It is important to note that these reservations apply not merely to ordinary members in panchayat but also to the position of chairperson or adhyaksh at all the 3 levels. Further, reservations of 1/3 of the seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seat reserved for the scheduled caste, scheduled tribes and backward caste. अब यहाँ पे और एडवांटेज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वुमेन्स का तो एक मिल ही रहा है, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन्स का मिल ही रहा है, पर जो यहाँ पे एससी एसटी है ना उसके अंदर भी वुमेन्स को 1/3 का रिजर्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वुमेन्स को बहुत एडवांटेज हो रहा है, जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं उनको कितने रिजर्वेशन मिल रहे हैं, एक तो एज अ वुमेन वाली कैटेगरी में भी मिल रहा है उन्हें रिजर्वेशन, और एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में उसमें भी वुमेन्स को 1/3 टोटल, मान लीजिए 10 लोग आ रहे हैं इसके अंदर तो उसका 1/3 किसको मिलेगा, वुमेन्स को। ठीक है, तो 2 जगह पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है यहाँ पे। उस लाइन को मैं दोबारा रेड कर रहा हूँ तो आप उसको सुनिए दोबारा से। Further, reservation of 1/3 of the seats for women is not merely in the general category of seats, but also within the seats reserved for scheduled caste, scheduled tribes, and backward class. This means that a seat may be reserved simultaneously for a woman candidate and one belonging to the scheduled caste, scheduled tribes. Thus, a sarpanch would have to be a Dalit woman or an Adivasi woman. तो ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन्स को यहाँ पे कितना ज्यादा सपोर्ट, यहाँ पे देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली 1992 का हमने कंटेंट देखते हुए बोला कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात करें, इसीलिए उनको यहाँ पे इतना रिजर्वेशन इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाएं और अपनी सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग कार्व आउट करें। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पहला सरपंच का दोनों का। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया रिजर्वेशन का। अब जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अदरवाइज ये हाफ रह जाएगा।